जय हिंद young friends. मैं ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तवा and you are watching my YouTube channel. Dear young friends, I posted so far 21 videos here. I'm sure you must be enjoying its contents and a lot of change in your perspective about SSB preparations must have been induced because of these videos. Young friends, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत ही जनरल सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे. आई एम श्योर you'd be curious to know this also, but before that, before I come to the topic, I request you to kindly like and subscribe this channel and please spread the word, share and comment also so that I can get further motivation to improve upon the quality of the contents. Another thing, young friends, you know, I provide online guidance and dossier assessment. अगर आप में से किसी को ऑनलाइन गाइडेंस साइक टेक्निक के बारे में या डोजियर असेसमेंट के लिए मुझे संपर्क करना हो तो इस स्लाइड के नीचे आप देख सकते हैं नंबर दिए हुए हैं. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नंबर्स एंड कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. आज मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं. कुछ दिनों पहले की बात है. One of my students, online students, he wanted to have the dossier assessment. He has given his responses along with the stimuli, that means the pictures and the words and the SRT situations. After going through his responses, I found a very strange pattern in his responses. और काफी सारे ऐसे क्लूज मुझे मिले जिससे मुझे लगा कि इस कैंडिडेट में योग्यता, प्रतिभा, स्किल्स, मेरिट इसकी कमी नहीं है, लेकिन किसी वजह से वो मेरिट या स्किल या उसका टैलेंट रिस्पॉन्सेज में दिखाई नहीं दे रहा है. There could be multiple reasons, but one of the reasons which I hypothesized that perhaps he has been trained, coached or guided by somebody who is not from the field of psychology. पूछा मैंने उनसे कि who has been your guide, mentor or trainer in the psychological technique, and sure enough, my hunch, my guess was correct. He was trained by a person who has not been a psychologist, though an assessor. He was an interviewing officer, and he used to provide a package of psychological training and the group testing and the interview, entire tests and tools which are practiced at the SSBs. Well, this candidate has after getting the feedback on his responses, he has then decided to take my online course, and then he told, sir, if my training contents are misleading me to write the responses in some different way, what could be the correct ways? And after going through my course contents, this person has shared his feedback. I asked him, frankly speaking, now, do you find any difference in your perspective? So this is where he has shared me his feedback through his WhatsApp conversation. You can see here
ये स्क्रीनशॉट है उस व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन का. When he found that his responses are now different, मैंने उनसे पूछा कि अब आप बताइए कि हाउ डू यू फील दैट माय कंटेंट इज डिफरेंट और सिमिलर? Have they clarified some of your haze or doubts? So he has written, and I'm reading it for you. He said, no, sir, the information provided by you is completely different from IO's guidance and is genuine and authentic. I have never seen any assessor talking in this much depth about psychological tests. Unquote. This is the opinion by that person. Young friends, ये फैक्ट है कि आप में टैलेंट की कमी नहीं है. I, for one, very strongly believe that most of the candidates, they are unable to make grade not because they lack the talent, but they, under the influence of some people, they misrepresent their responses. So those people who have taken guidance from me, they found my contents very, very different. Friends, there's a reason for that. जब मैं कहता हूं कि मेरे कंटेंट्स डिफरेंट हैं या मेरा ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है या जो चीज मैं आपको देता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, मेरी मेथोडोलॉजी एंड कंटेंट्स बोथ आर डिफरेंट. एंड व्हाई दे आर डिफरेंट, देयर इज अ रीजन. पहली बात की, आई एम द स्टूडेंट ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम ऑफ साइकोलॉजी. I have not been merely trained by DIPR. DIPR असेसमेंट और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देती है. DIPR में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग या साइकोलॉजिकल नॉलेज का स्कोप बहुत थोड़ा है या उतना ही है जो बेयर मिनिमम है. और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के अलावा सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मेंटरशिप और एजुकेशन, इन चारों फील्ड्स में भी मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है. आप मेरा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, एक शॉर्ट वीडियो है, 4 मिनट्स 37-38 सेकेंड्स का है. उसमें मैंने along with the impression of my certificates I have shared about my educational qualification and experience. एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते और ट्रेनिंग, एजुकेशन और मेंटरशिप सिलेक्शन के साथ साथ लंबा एक्सपीरियंस होने के नाते मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा है. और इस वजह से मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो अगर आप फॉलो करें तो शायद आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बदल जाएगी. आई एम श्योर आफ्टर गोइंग थ्रू दीज कंटेंट्स, definitely your chances will increase because your perspective and your strategy to bring out your merit, that definitely will be changed. आपसे मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इन फील्ड्स में सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मेंटरशिप और एजुकेशन, इस फील्ड में एक्सपीरियंस की वजह से जो मेरा कन्विक्शन एंड कंक्लूजन है, जो मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास, और जो मेरे अपने निष्कर्ष हैं, मैं उनके बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं. और पहली बात यह है कि इस पूरे इकोसिस्टम में, एसएसपी ट्रेनिंग के इकोसिस्टम में कुछ मिथ, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी गई हैं जो करीब करीब हर जगह कॉमन है और
चूंकि इनके बारे में बार बार एक ही तरीके से दोहराया जाता है, द रिपीटिशन, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन, तो फिर वो चीजें सच लगने लगती हैं। जबकि in many ways these myths are different from reality. A few myths I'm going to share in my next slide. लेकिन अभी आप मेरे कंक्लूजन्स आप शेयर कीजिए। दूसरी बात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे आपके एकेडमिक एग्जामिनेशंस के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हों, चाहे जॉब्स के लिए हों, सारे ही एग्जाम्स में एक बेसिक चीज कॉमन है, और जिसको हम लोग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि दीज आर द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, which way X individual is different from Y. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करने के लिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं। बात थोड़ी एकेडमिक है, फिर भी आप समझेंगे तो आपके हित में होगा। एक टेस्ट को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट में एक सिलेबस होता है, टॉपिक्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं। आपको वो फैक्ट्स, फिगर्स, प्रिंसिपल्स, टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और कुछ दिन के बाद आपने उसमें से कितना लर्न किया है, हाउ मच कुड यू रिटेन, इसका एग्जाम होता है। इस टेस्ट में आप जितनी मेहनत करेंगे अचीवमेंट टेस्ट में, the probability of your scoring the marks or your success increases proportionately. जितनी आप मेहनत करेंगे, सफलता उसी अनुपात में आपके पास आएगी। उदाहरण के लिए, जैसे यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स होते हैं, आईएएस या पीसीएस, उसमें आप सब्जेक्ट, जो मेन एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्ट चुनते हैं, उन सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल आंसर्स होते हैं, उनको आप पढ़ते हैं, रिटेन करते हैं। जितनी आप अधिक मेहनत करते हैं, सफलता के चांसेस उसी अनुपात में बढ़ते हैं। तो ये हुआ अचीवमेंट टेस्ट। दूसरे तरीके के टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक टेस्ट दिया जाता है, और उसमें आपकी जो भी परफॉर्मेंस होती है, उसके हिसाब से आपके बारे में निर्णय लिया जाता है। जैसे आप सिलेक्शन बोर्ड्स में जाते हैं, तो उसमें आपको एक टेस्ट दिया जाता है, OIR, जो कि रफली इट कैन बी इक्वेटेड विद द इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी तरीके से एक और टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये भी एक तरीके का एबिलिटी टेस्ट है। एबिलिटी टेस्ट में फ्रेंड्स, आपकी साइकोलॉजिकल मेरिट, यानी थ्रू रॉ फैकल्टीज, इसमें मेहनत का उतना काम नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप किसी सिलेक्शन बोर्ड्स में असेसर से पूछेंगे कि क्या पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के बारे में प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो आपको जवाब मिलेगा, प्रैक्टिस से रिजल्ट्स प्रभावित होते हैं। इट प्रैक्टिस डज नॉट गिव अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर एबिलिटीज। एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप एबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो ये एबिलिटी टेस्ट है। हालांकि कोई कैंडिडेट कितना इंटेलिजेंट है, ये उसके मार्क्स से भी पता चलता है, बट मार्क्स आर नॉट वेरी रिलायबल एज फार एज हिज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और द एबिलिटी टू ग्रास्प एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज कंसर्न। दोनों में कहीं कहीं मिसमैच होता है। इसलिए सिलेक्शन बोर्ड्स फ्रेंड्स
एसएसबीज में आपकी एबिलिटीज टेस्ट की जाती है, न कि कोई और तरीका। नेक्स्ट चीज, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं और टेस्ट की तैयारी के बारे में बात करते हैं, तो इस तैयारी के लिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आपको रिफ्लेक्ट करना है इसके हिसाब से, यानी योर कंटेंट्स ऑफ लर्निंग विल डिसाइड व्हाट इज द करेक्ट मेथडोलॉजी और अप्रोच। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, कोई भी चीज हम सीखते हैं, तो सीखने का जो कंटेंट होता है, सीखने की जो विषय वस्तु होती है, वो अलग अलग होती है और उसके हिसाब से आपकी सीखने की स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात ये करूंगा कि एसएसबी ट्रेनिंग या कोचिंग के इकोसिस्टम में कौन कौन सी मिथ्स बना दी गई हैं, जो कि आज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एवरीवेयर, किसी भी शहर में आप जाइए, देयर आर सर्टेन बिलीव्स, certain oversimplified views about the SSBs, they have been spread। वो क्या है अभी हम देखते हैं। अब इस स्लाइड को आप गौर से देखिए, क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अपने रिस्पॉन्सेज में OLQs दिखाने हैं। यू हैव टू bring your responses, OLQs consciously in your responses। मैं जिस कैंडिडेट की मैंने बात की थोड़ी देर पहले, जब उससे डिस्कशंस हो रहे थे तो पता चला कि उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आपकी इस पर्टिकुलर स्टोरी में ये OLQs आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, रियलिटी तो ये है कि OLQs कैन नॉट बी कॉन्शियसली प्रेजेंटेड। ध्यान दीजिए, I repeat, OLQs cannot be consciously presented, they are automatically present in your responses। कैसे? मान लीजिए कि आप एक स्टोरी लिखते हैं, उस स्टोरी में आपने हीरो को एक टास्क दिया, टास्क पूरा करने के लिए हीरो कैसी स्ट्रेटेजी बनाता है, उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या किस तरीके की टीम बनाता है, उस टीम के साथ उसका क्या इक्वेशन बनता है, कितने लोगों को अपने बराबर रखता है, कितने लोगों को कमांड करता है, वो किस लेवल का टास्क है और उस टास्क में कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो यानी योर डिटर्मिनेशन, योर स्टेमिना, योर करेज, योर लीडरशिप क्वालिटीज, दे विल कम इन द वे योर हीरो हैज अचीव्ड द पर्टिकुलर टास्क। इसमें आप कॉन्शियसली कोई भी चीज नहीं ले आ सकते। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे लाइवलीनेस है, ये एक लीडर या एक कॉम्बैट या क्राइसिस लीडर की एक क्वालिटी है जो कि एज पर OLQ स्कीम इंक्लूडेड है। आप कैसे ले आ सकते हैं उसको? इट्स डिफिकल्ट, रादर डिफिकल्ट। इसी तरीके से स्पीड ऑफ डिसीजन, ये सारी क्वालिटीज होती हैं, आप प्रेजेंट नहीं करते हैं कॉन्शियसली, ये आपके रिस्पॉन्सेज में अपने आप दिखती हैं। उन रिस्पॉन्सेज को जब असेसर अपनी स्कीम के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से जब चर्न आउट करता है, जब उस को प्रोसेस करता है, तब वो रिस्पॉन्सेज उसको दिखाई पड़ती हैं।
I repeat, OLQs are not to be presented. OLQs cannot be presented in conscious way. OLQs automatically are manifested in your responses. दूसरे मिथ के बारे में बात करते हैं. वो ये है कि आपको साइकोलॉजिकल टेक्निक में बहुत हार्ड वर्क और प्रैक्टिस चाहिए. यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा यह भी एक मिथ है. साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको क्रिएटिविटी चाहिए. क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट किया जा सकता है, उसको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है. रियलाइजेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्ड वर्क. और आप एक ये भी चीज समझ लीजिए कि हार्ड वर्क अगर बिना डायरेक्शन को, अगर विदाउट रियलाइजिंग इन विच डायरेक्शन यू आर वर्किंग हार्ड, देन इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक. अगर आपने रॉन्ग डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना शुरू किया तो आपकी जो थिंकिंग की दिशा, उसकी कंडीशनिंग गलत हो जाएगी. इसलिए हार्ड वर्क करने से पहले लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बुक्स लेते हैं, उसमें से पिक्चर्स मिलती हैं, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू राइट द स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 मिनट में स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस हो सकती है. यू कैन प्रैक्टिस अ ड्यूरेशन, बट हाउ अबाउट कंटेंट? कंटेंट के लिए आपको एक मेंटर चाहिए, और करेक्ट मेंटर चाहिए. हार्ड वर्क से ज्यादा, आई रिपीट, मोर देन हार्ड वर्क, इट इज द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स रिक्वायर्ड. अनदर थिंग जो कि एज अ मिथ it has been spread in the environment and people have started believing it. वो क्या है कि there are certain situations in which the instructors they provide the model answer. और instructors को मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता हूं. एक्चुअली मेरे खुद के बहुत सारे कोर्सेज जो चले हैं, या मेरे खुद के सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर यू गिव मी अ मॉडल आंसर. तो मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि मॉडल आंसर कहाँ एप्लीकेबल होते हैं. मॉडल आंसर एप्लीकेबल होते हैं जहां पर सर्टेन स्टेप्स आर स्पेसिफाइड. एज्यूम दैट यू आर डिराइविंग अ सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन. देयर आर सर्टेन फिक्स स्टेप्स. यहां पर मॉडल आंसर काम करता है. या फॉर दैट मैटर लेट अस से एक कोई केस स्टडी है, आपको दी जाती है किसी और, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल साइंस में है या लॉ में है, जहां पर आपको एक केस हिस्ट्री दी जाती है. तो वहां पर सर्टेन बेसिक्स और सर्टेन फिक्स स्टेप्स होते हैं. वहां पर अगर इंस्ट्रक्टर आपको मॉडल आंसर देता है, देन इट इज परफेक्टली फाइन. लेकिन साइकोलॉजी में, खास करके बिहेवियर में, जब आपको कोई बिहेवियर करना पड़ता है तो वहां पर मॉडल आंसर नहीं उचित है. क्यों? जब आप मॉडल आंसर्स के ऊपर अगर आप डिपेंड करना शुरू करते हैं तो पहली चीज, आपका दिमाग, आपका माइंड, इट कन्वर्ट्स इनटू माइंडसेट. फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट द सिलेक्शन बोर्ड्स आर गोइंग टू select you for a job in the armed forces. You are going to lead your troops in the combat, and in the combat situation you cannot go with the mindset. You cannot make your mind like a programmed robot. You have to always remain in command of your mind, and it must be kept always open. तो जो इंस्ट्रक्टर आपको मॉडल आंसर देते हैं वो आपके दिमाग को बिल्कुल ही संकुचित कर देते हैं.
अब इस थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि लर्निंग सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द लर्निंग योर मेथडोलॉजी changes. Not one methodology is suitable in all forms of learning. Okay. अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का एक सवाल है, when was the first battle of Panipat fought? It is an information. बहुत सारी चीजें हैं, लेट अस से कि इट्स अ डायनेस्टी, राजाओं की वंशावलियां हैं, ये इंफॉर्मेशन है. इसके लिए द बेस्ट मेथडोलॉजी दैट सूट्स इज द रोट मेमोरी. मगर याद कर लीजिए, या फॉर दैट मैटर you remember your earliest of the learning days when you were in the school. आपको कहा जाता है टेबल्स आप याद करें. This is all information. Yes, subsequently you can rationalize it why 2 into 2 is 4. लेकिन इनिशियली आपको तो by rote आपको याद करना ही पड़ेगा. तो जब आपको इंफॉर्मेशन who is who, let us say in the cabinet, who is the president of which country, अगर आपको ये याद करना है तो आपको मगअप करना पड़ेगा. राइट? दूसरी चीज, जब आप कोई स्किल सीखते हैं, लेट अस से राइडिंग अ बाइसाइकिल और ड्राइविंग अ कार, और फॉर दैट मैटर लर्निंग टू फ्लाई द प्लेन्स, एरोप्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट, या कोई अगर आप सीख रहे हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है या कोई गाना गाना है, क्लासिकल, लेट अस से द डांस फॉर दैट मैटर, स्किल बेस्ड. स्किल्स आप कैसे सीखते हैं? बाय प्रैक्टिस एंड इमिटेशन. Imitation means what? There is a model way. The instructor, let us say, shows you a way. आप उसको imitate करते हैं, आप उनका अनुकरण करते हैं, आप उसकी नकल करते हैं. फिर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं. जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी स्किल में सुधार होगा. यू लर्न द मिस्टेक्स इन द बिहेवियर विल बी लेसन्ड एज यू प्रैक्टिस. यही के लिए देयर इज अ इंग्लिश प्रोवर्ब एंड यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. बट प्रैक्टिस वेयर यू आर लर्निंग अ स्किल. राइट? तीसरी चीज जो हम लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज. अब नॉलेज को बहुत मैं एक्सप्लेन कर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए कि लेट अस से y 4 into 4 is 16. इसी तरीके से कुछ फिनोमिनन होती है. लेट्स से यू आर कैलकुलेटिंग द हाफ लाइफ ऑफ सम पर्टिकुलर, लेट्स से रेडियो एक्टिव थिंग. नॉलेज कैसे हम सीखते हैं? नॉलेज सीखते हैं बाय द रूट ऑफ लॉजिक. अगर आपको लॉजिकल स्टेप से कोई चीज सिखाई जाती है तो यू लर्न द नॉलेज. तो ये तीन चीजें अभी तक हमने देखी. इंफॉर्मेशन के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी है, लेट्स से रोट. स्किल के लिए बाय प्रैक्टिस एंड बाय रिहर्सल्स, और नॉलेज के लिए बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक. अब हम आते हैं उस चीज के ऊपर जो हमारी साइकोलॉजिकल टेक्निक में एप्लीकेबल है, दैट इज द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट के लिए फ्रेंड्स यू रिक्वायर एक्सप्लेनेशन. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स लर्निंग. इसमें लॉजिक भी है, इसमें इंफॉर्मेशन भी है, इसमें some steps you have to do, you have to take as per the guided or demonstration, but more than this you require realization. Your source, your mentor has to explain something using various possible methods, but important is not how the instructor has conveyed anything to you. Important thing would be
whether it has penetrated your mind or not. And everybody responds to instructor's way in different ways. Same instructions. Everybody cannot be the pupils. Let us say if मैं ही अपनी बात कर रहा हूं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ही क्लास में सेम चीजें मैं बताऊं अगर, तो भी 10 different students will be having 10 different level of realization. Friends, I am repeating, in psychological technique, the methodology has to be explanation and not prescription. Prescription works best when you are learning the skill. Very unfortunately, very sadly, I have seen most of the mentors or the instructors in the ecosystem of SSB training, they start prescribing you. Partly, well, they have got their own limitation because most of them, they are not the students of psychology. लेकिन उससे भी ज्यादा you people as the pupils, as the recipients, you insist कि सर कुछ बताइए, model answer दीजिए. Many times मुझसे लोग इस तरीके, sir, if you were in this situation, what you would have done, right? Friends, in psych technique, very less of information, very less of skills, and very less scope of knowledge. In psych technique, what is important is the conceptual clarity. For that, your mentor, your guide must explain you and make you realize the rationale and the logic behind every test and tools in the psychological test battery. Friends, I want you to understand that psychological tests, they believe in the principle of anonymity of responses. The same situation has got the scope of, unlimited responses. कोई भी सिचुएशन जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आती है, it cannot be diffused or solved only by one way. It is not mathematics, be convinced. It is not chemistry or it is not a factual science. It is a human science in which enormous responses. That's what I have told you, that in psychology, the principle is the principle of enormity of response in any given situation. So keep your creativity and keep your faith firm that there cannot be only a few and a fixed responses. अगली बात, responses जो हम देते हैं, it can never be evaluated in terms of being right or wrong, except for the intelligence test. In psychological test battery, your responses are always evaluated in terms of whether they are appropriate or relevant to the situation. So some people, when they ask their instructors, including me, they ask, sir, if I write this particular reaction, will it be right or will it be wrong? And here I would like to tell you another thing, that many people think that what will be positive and what will be negative. Friends, I've already covered the positivity and negativity and the concepts and the misconceptions in yet another video just a few days back. Please remember, positivity and negativity, they are only the judgment. But what is positive and what is negative, that you need to really, what appears positive from one angle depends on, what is the perspective or the angle you are looking from. आजकल नवरात्र चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद दशहरा आ जाएगा.
And as per the, that religious beliefs and the scriptures, रामचंद्र जी ने रावण को उनका वध किया. रामचंद्र जी के एंगल से देखें तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, रावण के एंगल से देख लें, पर्सनल एंगल से देख लें तो ये नेगेटिव आएगा. इट्स ऑल रिलेटिव. वी नीड टू रीहैश आवरसेल्व्स. अगली चीज, वी गिव यू द ट्रेनिंग फॉर giving your responses not because we want you to just retain it. The explanation which is given to you, especially in my instructions, is aimed to bring a change in your perspective, change in your behavior. So please remember that psychological tests cannot be made very academic. The training of psychological tests cannot be made very academic. It is meant to cause a change in your behavior. और याद रखिएगा, hard work pays, but certainly if the hard work is done in an inappropriate direction, certainly it is more harmful than being any, beneficial to you. आपको ये फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा करता है. As per the English proverb that you can see here, rowing harder does not help if the boat is heading in the wrong direction. Friends, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं और यहां पर भी आई एम very sadly reminding you that in the field of psychological mentorship, the quality of mentors is definitely questionable. देखो, psychology uses a lot of common sense also. Frankly speaking, when we were, the young students of psychology, one of the wise professors, he has told psychology is nothing but the common sense given a system. Psychology uses a lot of folk wisdom, lot of common sense. तो इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि even with the common, sense and the common, the folk wisdom, they can guide the people. No, sorry. Actually, I equate the field of psychology with a field that has got no fencing, that doesn't have any system of guarding against the intruders. In comparison to, if you see, only a qualified GTO can tell you about the principles of command task, level of individual, difficulties that has been added to individual and the group task. This field is well guarded. Similarly, interview also, okay, it's partially guarded, well guarded. But unfortunately, the field of psychological test, it doesn't have any fencing around to prevent it from the intruders. And this is the reason why many people, they try their hands using their only folk wisdom and general knowledge and the positive approach, of course. Okay. और एक ये भी बात है कि most of the psychological mentors, I mean the mentors of the psychological test, they are at the most trained by DIPR, and DIPR trains the people only for assessment and administration of the test. DIPR doesn't make any person qualified enough to train you to create your responses. Judging the response is one thing, and creating the response in you is yet another thing. So, dear friends, please do not make your preparation resting on the myths. Please understand the logic, realize the test and tools in the psychological test battery. Only then your preparation can be effective and it could be productive. Dear young friends, once again,
I request you that please like, subscribe, and interact with me. Watch my various videos. You'll have enough of wisdom on the general principles and test principles of testing at SSBs, and particularly in the psychological test battery. At the same time, in case you feel like approaching me for personal guidance and dossier assessment, kindly, I repeat, take the screenshot and approach me. You are most welcome. Well, on this note, I wish you the very best of luck. Thank you. Jai Hind. God bless.